Good afternoon, students. Again, very welcome on the platform of Sahid Pramod B.Ed College, and for the course BSc B.Ed integrated course, I am taking the physics part 1, and as I told you yesterday, I have finished the second unit, second order differential equation with variable coefficients. So, yesterday itself I have finished that unit. So, I will start the next unit, so called is gravitational interaction. So, I will give you the brief of the points which will be covered under the chapter gravitational interaction, and we will give you the points which is in your syllabus, यानी कि जो आपके सिलेबस में है उसके पॉइंट्स के बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ाने जाएंगे. ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यूनिट 4, आई वुड लाइक टू गिव यू द असाइनमेंट्स फॉर यूनिट 3. ओके, तो ये जो असाइनमेंट है ये आपको सबमिशन के समय तैयार रखना पड़ेगा. So, write down the assignment from unit 3. So, first assignment is write down the working rule to solve second order differential equation with variable coefficient. यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को विथ वेरिएबल कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए जो उसके वर्किंग रूल है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है. सो दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट, and note it down carefully because this will be checked out at the time of submission. The second one is solve following equation by power series method. यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको पावर सीरीज मेथड से आपको क्या करना है, सोल्व करना है. ओके, सो दिस इज द 2 असाइनमेंट. थर्ड वन यू कैन राइट डाउन. Third assignment is write down the difference between power series method and Frobenius method. So, I have given the difference, so you have to write down the difference in the columns. One column power series method and other is Frobenius method. So, what are the main difference you have to write down. And the fourth, the last assignment from this unit is solve following Bessel's equation by Frobenius method. Okay, and write down the equation. I am writing here so that कि it can be visible, जो आपको दिखाई देगा. मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ so that कि everyone can see it clearly. Okay, so what is the equation? X square d2y upon dx square plus x dy upon dx plus x square minus 4 into y is equal to 0. So, this is the
fourth assignment. So please write down all these assignments and keep ready your assignment paper, and how to prepare your assignment already I have given the instructions or rules, what are the basic rules to prepare the assignments. So you have to keep it in mind and maintain all the things, all the instructions which is taken during preparation of assignment. Okay. So that's it from the unit 3. Okay. So you have to keep ready. Okay. And you can give an intimation to your college representative about your assignments readiness. If someone is having ready assignment, so please inform so that I could analyze whether you are taking this seriously or not. Okay. तो अब हम बात करेंगे यूनिट 4 का. ओके. सो एज आई हैव रिटन हियर, यूनिट 4 इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. सो इन दिस section we will cover the following points, which is as follows. The first point is gravitation as a fundamental nature of force. So we will describe the first point, that gravitation is the fundamental nature of force. What is the next point which will be covered in your syllabus? That is inertial mass and gravitational mass. So this is the second point which will be taken after first point. You can write it down, you can take it down, so that you can also analyze whether any points are missing और नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर. यानी कि कुछ इसमें से पॉइंट अगर रह गया है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू the first point is a spherical cell, and second one is a solid sphere, So what is the impact of gravitational field and potential due to a spherical cell and that of solid sphere? The very next point is variation of acceleration, due to gravity going to rotational motion of the earth, So you have to define the variation of acceleration due to gravity during the rotational motion of the earth. After this point, we will discuss about the very next point I am writing here. So please take it down properly in your notebook. आप इसको अपने notebook में properly note कर ले. This is nothing but your syllabus. You can say this is your syllabus which will be covered during this unit.
So very next point after that, the principle of equivalence. The principle of equivalence. After that, we will discuss Earth satellite. Earth's satellite. Next point is characteristics velocity. Characteristic velocity. Your next point is energy rotation या energy relation during launching of सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करते समय एनर्जी का क्या रिलेशन रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. Global positioning system. So these are the points which you can say this is your syllabus, which will be covered under the chapter gravitational interaction. Okay, so take it down properly in your notebook, and one by one we will go ahead. So now today we are going to discuss the first point, that is gravitation as फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स. यानी कि ग्रेविटेशन जो है वह मूल जो बल है उसमें उसका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में आज हम देखेंगे. सो यू कैन राइट द हेडिंग ग्रेविटेशन एज फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स. दिस इज योर टॉपिक about which we will discuss today. Gravitation as a fundamental nature of force. फोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा है. ओके, बहुत तरह के फोर्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, या जानने की जरूरत नहीं है. हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन जो है दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस, उसके बारे में बात करेंगे. सो एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस व्हिच आर टेकन इन द फिजिक्स. So these are the following are the 4 fundamental nature of forces. यानी कि फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेज उसके 4 टाइप हैं. पहला टाइप क्या है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Second one is weak force. Third one is electromagnetic force. And last one is a strong force, or you can say nuclear force. तो ये 4 टाइप के फोर्स है जिसको फंडामेंटल फोर्स के कैटेगरी में रखा गया है. वो क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स. इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फोर्स. तो अभी हमको इस 3 के बारे में बात नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट योर सिलेबस. वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अभी तक
आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा। क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ा चीज है ना। ग्रेविटेशन के कारण ही तो हम खड़े हैं। यस, अगर ग्रेविटेशन अगर नहीं रहेगा तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, यू विल फेल डाउन। अगर आप गिरते भी हो फिर भी उसमें भी ग्रेविटेशन ही है, आप उड़ रहे होते हैं, है ना, लाइक ऑन द मून। लेकिन मून पे भी ग्रेविटेशन होता है, आपको मालूम है क्या? मून पे भी ग्रेविटेशन होता है। हाँ, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहां पे तो आपको उड़ना ही है। अगर आपने एक्सेलरेशन और प्रिकॉशन नहीं लिया तो वहां पे भी आप उड़ोगे। ओके, सो यह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जो अभी तक हमने स्टडी किया है 9th क्लास या 11th क्लास में, उसमें क्या बोलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि इफ देयर आर टू बॉडीज और टू सब्सटेंसेस having mass m1 and m2 and it is separated by a distance of r, if there are two bodies having mass m1 and m2 separated by a distance of r, then the gravitational force among or between two bodies, how much it is? G is equal to G m1 m2 upon r square, where G is called gravitational constant. अब इसको और समझते हैं कि अगर दो पिंड है या दो वस्तु है या पदार्थ है, दोनों का अगर द्रव्यमान m1 और m2 है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो अगर r है, तो दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वैल्यू ऑफ दिस इज 6 into 6 7 into 10 raised to minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आई थिंक ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। दिस इज नॉट -12, दिस इज -11, पार्डन, बेग पार्डन। ओके, 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg। बट ये स्मॉल जी कुछ अलग है। हाँ, कुछ लोग ये स्मॉल जी और कैपिटल जी को मिक्स कर लेते हैं, है ना, क्या फर्क पड़ता है? नो, mind it, this is a difference. This is a gravitational constant where this is the acceleration due to gravity, so there is a difference. So keep it in mind. F is equal to capital G m1 m2 upon r square, and that is called gravitational force between two bodies. Okay, ये तो हम लोग सब जानते हैं। Okay, now we will see some properties of gravitational force. So what are the, as a fundamental nature of force, what are the properties of gravitational force? Write down properties of gravitational force. Properties of gravitational force. पहला फोर्स क्या है इसका प्रॉपर्टी? तो आप देखेंगे कि ग्रेविटेशन जो है वह अर्थ से लेकर के और मून तक लगता है, या अर्थ से लेकर के सन तक लगता है, या सैटेलाइट तक लगता है, या स्टार्स की तरह लगता है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑफ सन इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स बिकॉज it is acting which is distant from far away,
और डिस्टेंस ऑफ वेरी वेरी ग्रेट क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी के बीच ये दो वस्तुओं के बीच ये लगता है, लाइक अर्थ एंड मून. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. सेकेंड इज द टाइप ऑफ gravitational force is attractive. ये अट्रैक्ट करता है, हमेशा अट्रैक्ट, रिपेल नहीं करता है. फोर्स जो है वो या तो रिपेल करता है नहीं तो अट्रैक्ट करता है. लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? अट्रैक्शन का, आकर्षण, आकर्षित करता है. ये रिपेल नहीं करता, आकर्षित करता है. दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ ये खींचता है. सो द टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव. This is the second property. What is the third property? This is a weak force. This is a weak force. अब आप बोलेंगे कि वो सर इतना बड़ा फोर्स है, वो अर्थ और मून के बीच में लग रहा है. आप बोल रहे वीक फोर्स है, इतना वीक फोर्स रहेगा तो इतना इतना दूर में कैसे लगेगा? वैसे नहीं समझिए आप. ये वीक फोर्स इसलिए है क्योंकि सपोज अगर आप खड़े हैं तो आप जंप कर सकते हैं. अगर आपने एफर्ट लगाया तो आप ऐसे कूद सकते हैं. जब आप यहां पे खड़े हैं और आप जंप कर पा रहे हैं, when you are able to jump means you are dominating the gravitational force acting on yours. यानी कि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा आपके ऊपर लग रहा है उससे ज्यादा एबिलिटी आपके पास है, यानी कि आप उसको हरा रहे हैं, यानी उसको आप डोमिनेट कर रहे हैं, तभी तो आप कूद रहे हैं, तभी तो आप जंप कर सकते हैं. यू आर हैविंग एबिलिटी टू जंप. जब आप जंप कर सकते हैं इसका मतलब है कि वीक फोर्स ही तो होगा. अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा तो आप जंप नहीं कर पाते. अगर आपके पास ऐसा कुछ मैग्नेट लगा दिया जाए या बांध दिया जाए तो आप जंप नहीं कर पाएंगे. क्यों जंप नहीं कर पाएंगे? बिकॉज कि व्हाट एवर यू विल टेक अ एफर्ट, और जो भी आप एक अपोजिशन में जो फोर्स लगाओगे, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा जिस चीज से बंधा हुआ है उससे कम होगा, तभी तो आप जंप नहीं कर पाएंगे. बट नाउ यू आर एबल टू जंप. इसका मतलब यह है कि यू आर एबल टू डोमिनेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड फ्रॉम अर्थ. सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ वीक फोर्स. इसको समझिए वीक फोर्स क्यों है. ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? It obeys, this is fourth one, it obeys the inverse square law. Inverse square law. आप बोलेंगे inverse square law क्या है? You know F is equal to G m1 m2 upon r square, means you can write it down F is inversely proportional to r square. Means it obeys the inverse square rule, means square of the radius and inverse of the square. So whenever you will increase the radius twice, if you increase the radius twice, then force will decrease by more than 2, यानी कि 4 times. When you are increasing radius twice, the force will down by 4, means कि if you increase the r by n times, the force will decrease to n square times.
दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, ये क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अगर आप रेडियस 2 गुना बढ़ाते हो तो फोर्स 4 गुना कम होगा। इसका मतलब है कि अगर रेडियस आप जितना भी बढ़ाते हो उसके स्क्वायर जितना होगा उतना वहां पे फोर्स कम हो जाएगा। और इसका इन्वर्स, इसका अपोजिट भी ले लो कि अगर रेडियस आप 2 गुना कम करते हो तो फोर्स उसके स्क्वायर इतना, यानी कि उसके वर्ग इतना बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दिस फोर्स ऑलवेज ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब समझ में आ गया? ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज this is a central force. Central force. Why this is a central force? ये central force इसलिए है क्योंकि ये हमेशा किसी भी पिंड के केंद्र के जगह से लगता है, यानी कि जहां पे केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ही और केंद्र बिंदु तक लगता है। यानी कि इफ सपोज दिस इज अ बॉडी, एनी बॉडी, सो देयर मस्ट बी अ सेंटर और देयर इज अनदर बॉडी। कोई भी बॉडी ऐसा ले लो, आप बोलोगे केवल सर्कुलर बॉडी रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, बढ़ेगा, उसका ही रहेगा? नो। अगर आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉडी भी है, अगर घनाकार है या घनाभाकार है या सिलिंड्रिकल है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसलिए तो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये हमेशा दो पिंडों के सेंटर के से एक्ट करता है, यानी कि इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेंटर एंड एंड टू सेंटर, यानी कि इट इज ऑल्सो का सेंटर टू सेंटर फोर्स। और सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स, यानी कि ये हमेशा किसी भी पिंड के केंद्र से लगता है, केंद्र से उत्पन्न होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी आप समझ गए कि ग्रेविटेशन जो है वह फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स है। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स देयर आर अदर 3 फोर्स ऑल्सो called weak force, electromagnetic force, and last one is strong or nuclear force. But I have talked about only gravitational force since this is your syllabus. So now our next topic is what is inertial mass and what is gravitational mass. मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। ऐसे by tomorrow we will discuss in detail, but today I am giving you a brief. हम पहले inertial mass के बारे में बात करेंगे। inertial mass, आप पूछेंगे inertial mass क्या है? This inertial mass is related with inertia. Inertia, आप पूछेंगे क्या इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मीन्स जड़त्व। दिस इज रिलेटेड विथ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? आपने तो बोला था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। उसमें इनर्शिया कहाँ है? नहीं। उसको आप अगर भाषा में देखेंगे, सो एनी सब्सटेंस or any body you can say want to be either in rest or motion unless and until a external force is applied on it. यही तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी वस्तु वो अपने गत्यावस्था या स्थिरावस्था में रहना चाहती है कब तक?
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। यही तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ एनी बॉडी आइदर बी इन रेस्ट और आइदर बी इन मोशन, दैट इज नथिंग बट इनर्शिया। यानी कि ऐसा गुण जो ये आपको ये बताता है कि वस्तु या तो गत्यावस्था में रहना चाहती है या स्थिरावस्था में रहना चाहती है, इसी गुण को तो हम जड़त्व कहते हैं, इसी गुण को तो हम इनर्शिया कहते हैं। दैट इज इनर्शिया। और मैं क्या समझाऊं, इनर्शिया इज नथिंग बट दैट। और ये जो गुण है इसको अगर आपको बदलना है, चेंज करना है, यानी कि रेस्ट को मोशन में करना है या मोशन को रेस्ट में करना है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। और यहीं से तो परिभाषा आया फोर्स का कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसमें संवेग के बदलने का या उसमें जो परिवर्तन है उसकी दर को ही तो हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी बात में बात नहीं करेंगे। यानी कि हम कहां पे थे, इनर्शिया पे। यानी कि इनर्शियल मास, यानी कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो जिस समय वह मोशन में है उस समय जो उसके पास मास है, यही तो इनर्शियल मास है। अगर हम दूसरे भाषा में करेंगे तो व्हाट इज मास। अगर मास के बारे में बात करेंगे तो क्या है मास, ये बहुत बड़ा चीज है। मास क्या है, आपने बहुत ये साउथ इंड मूवी देखा होगा, उसमें मास मास बोलता है ना, एक है ना मास मास। ठीक है, लेकिन है क्या, मास क्या है? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक। बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये मास क्या है। व्हाट इज मास? मास को ऐसे आप समझिए सीधे सीधे कि अगर कोई पदार्थ है, अगर इसका मास ज्ञात करना है, इसका मतलब है इसमें जो भी मैटर है, यानी कि टीनी पार्टिकल से ये बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। रबर है तो छोटे छोटे रबर से बना होगा। यानी कि उस सारे मैटर को अगर हम एक साथ कंबाइंड कर देंगे, एक साथ हम कंबाइंड कर देंगे तो कुछ चीज प्राप्त होगा। छोटे छोटे चीज को मिला करके एक बड़ा चीज कर देंगे तो क्या मिलता है, वो उसी को तो हम मास बोलते हैं। पहले कुछ नहीं है, अकेला कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे मैटर को जब हम मिला करके कंबाइंड करके एक बॉल बना दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, यानी कि वेटेज। सो इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच इज possessing inside the body। यानी कि एक बॉडी के अंदर जितने भी मैटर है सबका क्वांटिटी अगर हम एक साथ कर लेते हैं तो दैट इज मास। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो जो हमने डेरिवेशन किया था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर 9th क्लास फिजिक्स, पढ़ा होगा आपने। अब तो खैर एवरेज मार्किंग हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय आप लोग थे उस समय कोरोना नहीं था, तो आपको याद होना चाहिए। अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो सब एवरेज मार्किंग पे चल रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो एवरेज स्टूडेंट को पता होगा कि F इक्वल टू ma। अगर हम इनर्शियल मास की बात करते हैं तो m को हम mi लिख सकते हैं। तो अगर mi निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। इफ इस एक्सीलरेशन को अगर आप 1 यूनिट कर देते हैं, अगर इस एक्सीलरेशन को आप 1 यूनिट कर देते हैं तो ये जो इनर्शियल मास है